Good morning, students. Now, today we are going to do the chapter 12 of business study, that is consumer protection. Okay, so what we are going to learn in this chapter, we are going to learn about the concept, that what does it mean, then the importance of the consumer protection, then Consumer Protection Act 1986. Here we will be learning about the meaning of the consumer, rights and responsibility of the consumer, who can file a complaint. Like suppose some case you want to file on some company, then who can file this? That who is the consumer? Whether there you will have to learn about the definition of the consumer. कि consumer कौन है? Then only we can do it. देन रिड्रेसल एजेंसी और रिड्रेसल मशीनरी, यहाँ पे कोई मशीनरी की बात नहीं हो रही, रिड्रेसल एजेंसीज की बात हो रही है, लाइक डिस्ट्रिक्ट फॉरम, नेशनल कमीशन। तो ये जब चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर क्या आप केस फाइल कर सकते हो, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देन रेमेडीज, रेमेडीज यानी कि सॉल्यूशन क्या है वो अपन पढ़ेंगे। देन कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे होती है, तो यहाँ पे कुछ एनजीओज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मिल के काम करती हैं जिससे कि अवेयरनेस हो कंज्यूमर को, ताकि कुछ गलत चीज़ ना खरीदे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग क्या है यहाँ पे। सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेफर्स टू द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। ये जो भी हक अधिकार दिए गए कंज्यूमर को, तो उसको प्रोटेक्शन करने की यहाँ पर बात होती है। एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, हर कंपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट एक टीम रहती है जो कि ये काम करती है मार्केटिंग का। तो उन्होंने ये क्लियर कर रखा है दैट द कंज्यूमर इज द किंग पिन इन द मार्केट। तो बिल्कुल सही है, उन्हीं का ये कहना है कि मार्केट रिसर्च में ये पता चल चुका है कि जो कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बनानी है कंपनी को। हियर द प्रोड्यूसर शुड बी producing in good, the keeping in the mind the requirement of the customer and safety of the consumer. But it is viewed or observed that this obligation is neglected by some businessmen, and they are involved in the unfair practices such as supply of substandard quality, adulteration, etc. अब यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं वो लोग कि किंग पिन होता है मार्केट में, बिल्कुल कंज्यूमर है तो ही आपकी कंपनी चल रही है, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज द ट्रुथ। बट व्हाट हैपन स्टिल सम कंपनीज इन ऑर्डर टू मेक मोर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करती है, मिक्सिंग करेंगी चीज़ों की, एडल्ट्रेशन करेंगी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाते हैं, क्वालिटी में कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग्स रहती हैं। तो ये चीज़ें कंज्यूमर के साथ में कर जाती है। कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन रहता है बेसिकली जो कि गुड्स को परचेस कर रहा है फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। इसलिए हम चीज़ें खरीदते हैं, लाइक टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, ये हम क्यों परचेस करते हैं? वाई डू वी बाइंग इट? बिकॉज वी नीड इट, समहाउ इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू अस, दैट्स वाई वी आर परचेसिंग सच काइंड ऑफ stuff. But the company wants to make profit. What they will do? There are chances even a company like Nestle, which is such a good company and having a very good reputation in the eyes of the people, even they were adding some wrong ingredients in the this product, which is called as Maggi noodles. So ingredients were not right, so even such a company was doing like that. So here the customer or consumer is not safe here, so that why there is a need to make some act. So Consumer Protection Act is there, which gives protection to the rights of the consumer. Okay, now let us come to the importance of Consumer Protection Act. What is importance of this consumer protection? Now consumer protection is very wide. It includes right, responsibility and various remedies available to the consumer. It is only beneficial for consumer, but it is equally important for the businessman also. See, here the importance of the consumer protection, definitely consumer protection gives right to the right of the protection of the rights of these consumers. But what happened at the same time, it is good for the business also. Okay, because of the fear of this protection. Okay, because what is happening, we are here making an act. Okay, so it is going to protect the rights of the consumer, so company know that there is some kind of act there in the market. If we are going to do something wrong, then they are going to catch us for this and they are going to punish. So this is the thing which is protecting. So at least the businessman will be acting in a right manner, making the right product, selling at the right prices, that he is going to do definitely. So somehow it will beneficial for the companies also. Their goodwill is going to improve in the market. Okay, if they are making right product, then definitely it is helping them somehow. Now the importance of the Consumer Protection Act from the consumer points of view. So we are going to see the importance from the consumer प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर पॉइंट्स ऑफ व्यू। सो कंज्यूमर के नजरिए से हम देखेंगे क्या जरूरी है। सी, द फर्स्ट पॉइंट इज द कंज्यूमर इज इग्नोरेंस। Consumer protection provides information to the ignorant customers, okay, regarding rights and remedies available to them.
It spreads awareness so that the consumer can know about the various redressal agencies where they can approach to protect their rights. See, here the consumers are ignorance, means there are some people who don't know about the rights. What are the rights the consumer is having in this act? Now there are some solutions also. If something wrong product they are buying and due to it some harm has been caused to their life, okay, so here they can approach some redressal agency and they can complain there, okay, they can file their complaint, and then these residence redressal agencies, okay, they are going to look into the matter that what is wrong with the product, okay, and sometimes even the product are sent for just sample check and all. So if found guilty, then it will be a problem for the company. Just like in case of Ranbaxy, it happened. I think around 65,000 medicines were banned of Ranbaxy. Then what happened now? Ranbaxy has been sold to Sun Pharma company because they took such a kind of loss. So if you are going to make some substandard quality product in order to make profit, because here consumer protection act already there, so if something wrong happens to the customers and all, so they are going to get hold of you. Now the second point, unorganized consumers. Unorganized consumers, okay, organized means organization. यहाँ पर कोई organization अपनी इतनी सारी है नहीं इंडिया में. The thing is that who are going to look after the rights, कि अगर आपको कुछ गलत हुआ है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए खड़ी हो जाए कि नहीं ये गलत हुआ है हम फाइल करेंगे केस, ऐसा कुछ है नहीं. तो अनऑर्गेनाइज्ड है हम लोग, ठीक है. तो यहाँ पर इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है. there are very few consumer organization which are working to protect the interest of the consumer. अब इंडिया में ऐसी बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए खड़ी हुई हैं. Now consumer protection encourages establishment of more organization. Consumer protection provides power and right to this organization as this organization can file केस ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर. अब ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी रखी हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, तो ये इनका क्या काम है, इनको कुछ पावर्स और राइट मिले कि ये लोग जाके वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं. किसके बिहाफ पे? आपके कस्टमर्स के बिहाफ पे. तो कस्टमर्स को अगर ये सब बातें बताई जाए तो डेफिनेटली वो भी थोड़ा सेफ हो जाता है, वो भी जाके फाइल कर सकता है केस अगेंस्ट सच काइंड ऑफ कंपनीज, ओके, जो कि जिन्होंने की गलत किया है. अब वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग. तो यहाँ पर हम अनऑर्गेनाइज हैं तभी इस एक्ट का इंपॉर्टेंस है कि हमारे लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा मिला है कि हाँ वो भी हमारे लिए आए एंड दे विल fight for us, like if something happened to us then in this case they're going to fight for our rights. Now third, widespread exploitation of the consumer. सो सबको पता है यहाँ पे कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है कंज्यूमर्स का, ठीक है. सो ऑल्दो नाउअडेज कंज्यूमर इज द किंग पिन, ओके, किंग पिन मतलब राजा माना जाता है कंज्यूमर को मार्केट का. बट व्हाट इज द ट्रूथ हियर? बट ऑल्सो देयर विल बी लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एज बिजनेसमैन यूज वेरियस unfair trade practices to cheat and exploit the consumers. The consumer protection provides safeguard to the consumers from such exploitations. Now what happens, see यहाँ पर exploitation बहुत होता है, even ये है law but इसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां in order to sell झूठ बोल देती है. like insurance आपको बोल दिया जाता है कि यहाँ पे सर आपको इतना % रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा लगा दीजिए, you will get crores of rupees in the future after this many years. So what happens, the person gets just एकदम ग्रीडी हो जाता है कि ये भी इतना सारा पैसा मिलेगा मुझे एंड ब्लाइंडली ही इन्वेस्ट हिज मनी. तो ये क्या होता है पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे उसका पैसा इतना ज़्यादा बढ़ा ही नहीं और वो चीज़ उसके साथ में एक तरह से धोखा जैसा वो फील करता है. तो ये जो चीज़ें झूठ बोल के बेच देना, दिस इज़ नॉट राइट. तो एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल होता है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक्ट इस एक्सप्लॉयटेशन से भी हमको बचाता है, मीन्स अपनों को मीन्स कंज्यूमर को इट सेव्स, है ना. तो यहाँ पर इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट्स ऑफ व्यू. अब हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिजनेस को क्या फायदा है, हाउ द बिजनेस इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सो फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, okay. So after the liberalization globalization the level of the competition has increased so much of that is not internal but business has to face international competition. So we all know this कि यहाँ पर क्या होता है बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि बाहर की कंपनियां भी आ चुकी हैं आफ्टर दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है 1991 के बाद. तो अब कंपटीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है. So in this race of competition, the businessman can win and capture big share in the market only when they're able to satisfy the customer by designing the product, keeping in the mind the requirement of the customers. The businessman who ignore the interest and satisfaction of customer loses goodwill and clients. So it is in the interest of the business to keep customers satisfied.
So what are they trying to say here? यहाँ पर जो भी long term interest रहता है business का, because what happens in case of business, every company wants to improve its image in the eyes of the public. So here they'll be making product according to the needs of the people, and they satisfy the consumer. What they will get in the future? Definitely they will get more customers, more new customers will add to the family. Like in the beginning, when LG TV television it came, so there were very few people buying such kind of TV, but later on we can see that most of the people are having lot of demand for this LG televisions. So why does the business grow? Because they are actually making the product according to the needs of the customer. Okay, so this is very important thing to understand the customer, then designing the product according to the customer, and at the same point of time they are just taking care of the consumer because they are satisfying them. But this is also giving long term interest for the business, so in the future the business will run brightly. Now business use society's resources. Now everybody know that business houses they use resources from the society, like employees. From where this employee come? They come from the society only. Society से ही लोग employee बन के वहाँ काम करते हैं, ठीक है? पैसा खर्च करना, सपोज somebody is buying some goods, so मे बी पॉसिबल कि जो काम कर रहा है ब्रिटानिया कंपनी में या फिर किसी बजाज कंपनी में, तो क्या बजाज कंपनी की बाइक नहीं खरीदेगा? इवन दे विल परचेस. ओके, so this is a kind of resource coming from the peoples only, from the society, because when the people buy the products the money goes to the company. So actually you are using society's resources. So businessmen uses the resources of the society. They earn profit by supplying goods and services to the members of the society. So it must do something for the society. Businessmen are merely trustees of the resources. They must use the resources for the benefit of the consumer. So in short, the business is taking care of the society because ultimately they are getting some money from the society. So that's why the company should also take care. Okay, and in return, the society resources should be used rationally. मतलब कंपनी की सब भी जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको समझदारी से अच्छे से यूज करना है, ठीक है? दैट इज द रीजन. और यहाँ पे जो भी सोसाइटी है वहीं से आप अर्न कर रहे हो, तो ये सब ध्यान में रखना है. सोसाइटी में बन के रहना है एकदम से, क्योंकि जब सोसाइटी को पसंद आ जाता है ना कोई प्रोडक्ट, तो रेकमेंड करते हैं. बिल्कुल सोसाइटी का ऐसा सोशल ग्रुप हो जाता है बिल्कुल, जो कि जिस प्रोडक्ट के लिए माउथ पब्लिसिटी कर दे तो वो प्रोडक्ट के अलावा फिर दूसरे पे भरोसा ही नहीं जाता. लाइक कोलगेट टूथब्रश एंड और पेस्ट यू कैन से, तो उस पर एक भरोसा क्रिएट कर रखा है लोगों ने. दैट इज द ट्रेंड विच सोसाइटी में. So that advantage is given to the company here. Now social responsibility. Okay, ये जो सोसाइटी के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, लाइक टेकिंग केयर ऑफ द सोसाइटी, लाइक प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग गुड सैलरीज. Okay, so all these society people they are coming and doing working for the company. So it is morally justified that the company should also take care of these people. Then what they can do, like not polluting the environment, or they can provide employment to the people. This is help to the society actually from the side of business. So a businessman has social obligation towards various groups, and customer is one of the important group. It is responsibility of the businessman to provide quality goods at the reasonable prices. So consumer protection guides business to provide social responsibility. So here we can see that the consumer is also part of the society, so we'll have to provide him quality goods एंड एट अ रिजनेबल प्राइस. दैट मीन्स अगर आप बहुत अच्छा गुड बना रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्राइस चार्ज करो. आपको एक रिजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में उसको देना पड़ता है, जिससे कि लोग उसको परचेज कर पाएँ और बेनिफिट ले पाएँ. तो दैट इज़ द थिंग. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है यहाँ पर. ओके, पॉल्यूशन से रिलेटेड होती है, हो सकता है उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है, तो कंपनी को इसका भी बेनिफिट मिलता है. जो कंपनी इवन जॉब अगर अच्छे से दे रही है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही, तो उस पर भी लोगों का भरोसा रहता है. ओके, सो हियर क्वालिटी प्रोडक्ट तो चाहिए हमको, बट हम और भी उम्मीद करते हैं ना लोग कंपनी से कि हमको जॉब भी मिले. बिकॉज ऐसा नहीं कि हम खर्च ही करते जाएंगे, वी ऑल्सो नीड सम मनी. सो इफ दे विल प्रोवाइड सम एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, सो मनी विल कम टू देम एंड देन दे विल स्पेंड. इनडायरेक्टली द बेनिफिट विल बी गिवन टू द कंपनीज ओनली. उन्हीं के प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ये चीज़ होगी. तो दैट इज द काइंड ऑफ एडवांटेज दैट business units have. Now moral ethical justification. Now what is this point? Traditional ethics was a profession only. Okay, but today ethics plays a very important role in the business also. The ethics or moral values practiced by the businessmen add glory to the business. In today's environment, business without ethical values is not only a criminal activity, but no civil society can tolerate and allow the existence of unethical business. See, in today's time, what happens? Moral
this moral and ethic is very important. That is business ethic. See, every businessman, they know what they are doing, whether they are doing right or whether doing wrong. But the thing, this business ethics teach the businessman that they should follow the right act, because they should not cheat the customers or the consumers actually. So this is a kind of moral. You can differentiate between right and wrong. Okay, so here, if still a person who is known that he's doing something wrong and he's cheating the customer, that it is not right and morally it is not justified. So in the society, what will happen is, some companies cheating, then what will happen with that company? Nobody from the society is going to buy a product of that company. Maybe some will do, but not each and everyone. So indirectly, the company, what will happen at the end of the day, definitely that company is going to end up in the future. तो ऐसा बंद हो जाएगा कंपनी। तो जो भी बना रहे हैं उसको बिल्कुल राइटली बना रहा है, और मॉरल और एथिक्स का ख्याल रखना है कि आप बिजनेस कंडक्ट राइट वे में करना, ठीक है, चीट नहीं करना। ये सब चीज़ें आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, मॉरल स्टैंडर्ड का। अदरवाइज लोगों की आंखों में इमेज नहीं बनेगी कंपनी की, और फिर ऐसी कंपनी को लोग पसंद नहीं करते और प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मॉरली अगर जस्टिफाइड करते हो, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, दैट विल बी गुड विल ऑफ द कंपनी इन द आइज ऑफ द पीपल, एंड दे विल डेफिनेटली बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द particular company. Then government intervention means government is interfering in your business. So what is the thing here? सबसे पहले आपको देखना है कि आपको अच्छे से बिजनेस को कंडक्ट करना है, ईमानदारी से चलना है। सो यू कैन एक्चुअली सेव योर बिजनेस। बिजनेस बच सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना रखा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बना रखा है। तो अच्छे से बिजनेस करो ना, राइट। और अच्छे से बिजनेस होगा तो व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर टू मच देन इन योर बिजनेस। वो गवर्नमेंट फिर इतना इंटरफेयर नहीं करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट विल कम टू नो दैट दीज पीपल आर डूइंग रियली गुड जॉब। तो वो फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे उस चीज़ में। सो दैट इज अ गुड थिंग। सो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी लेस। ओके, सो इंटरवेंशन से आप बच सकते हो। तो ये इसका एक फायदा है बिजनेस बिजनेस का। किससे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। Now, consumer is the purpose of business. The basic purpose of business is to create more and more customers. ठीक है, and retain them. The businessman can create more customers only by satisfying the customer and protecting the interests of the customers. The customer is the foundation of the business. Now consumer ही सबसे ज़्यादा एक मेन पर्पस होता है। देखो, कोई भी बिजनेस, इफ anybody who is setting the business, definitely he is setting for some purpose. There is some purpose. So what is the purpose? Satisfying the customers. Okay, this is the purpose of every business. Doesn't matter it is a saloon or it is a kind of company, biscuit manufacturing company, it can be bakery, it can be anything. But ultimately what is the crux? That consumer को ही आप टारगेट करके चलते हो। अब वो कोई सी भी कंपनी हो सकती है, उसका पर्पस ही रहता है कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है। लाइक बेबी प्रोडक्ट्स में आप देखोगे तो हगीज हो गया या फिर पैम्पर्स हो गया, तो दे आर टारगेटिंग द किड्स। ओके, उनके डायरेक्टली किड्स को नहीं बेचेंगे, उनके पेरेंट्स ही खरीदेंगे। बट अल्टीमेटली दे आर टारगेटिंग, दैट टारगेटेड कस्टमर इज दैट इन्फेंट चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड। ओके, उसी को प्रोडक्ट बना रहे। तो वहाँ पर हर बिजनेस ग्रुप, दे विल डेफिनेटली टारगेट सम कंज्यूमर, और उसको सेटिस्फाई करने की बात की जाती है। नाउ, लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स। अब कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन मिलते हैं कंज्यूमर्स को? ओके, नाउ लीगली प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे क्या है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. Okay, this is the act which has been made to protect the right of the customers or consumers. Now, enactment of this Consumer Protection Act 1986 was one of the most important steps taken for the protection of the interests of the consumer. It has been coming into force since 1987. बना कब था? 1986 में बना था। और enactment कब हुआ, इन्फोर्स कब हुआ था, मतलब लागू कब हुआ? 1987 में, 1 जुलाई 1987 में लागू हुआ। इसके अंदर क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बेसिकली बनाया क्यों गया, पर्पस क्या था? कंज्यूमर के राइट्स, अधिकारों की रक्षा के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। नाउ इसके अंदर क्या है? The act has provided various rights and responsibility to consumer. So here the consumer getting some rights, अधिकार and responsibility, जिम्मेदारियां भी है कि अगर राइट दिया, अधिकार, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी जो आपको निभानी है वहां पर। ठीक है। Then second, it provides safeguards to the customer against defective goods, deficient goods, services, unfair trade practices, other form of exploitation. यहाँ पे जो भी शोषण होता है,
okay, the exploitation happens to the consumers, like making some adulteration or deficients means आपकी जैसे कि गाड़ी है, बाइक है, they promise you to give you 3 free services, but they are telling you afterwards that only one service is free, दो हम नहीं दे पाएंगे because हमने एक ही देते हैं, तो ये चीज़ झूठ बोली गई आपसे, that is deficiency which is coming, जो promise की गई quality, वो quality they are not providing, or some defective goods are there, होता है ना, सपोज मोटरसाइकिल यू हैव परचेज and some engine failure is there within 1 or 2 months, so what is this, you are buying a motorcycle and within 2 months you are checking that the engine is not working, then this is not right. So they have given you defective goods, and the company should agree it, and they should replace the product. If they are not doing, then we can approach such kind of रिड्रेसल एजेंसीज, ओके, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, ऐसी एजेंसी के पास जाना पड़ता है, बिकॉज कंपनी नहीं सुन रही, कंपनी सुन के अगर हमारा वही सॉल्यूशन कर दे तो दिस इज द बेस्ट कंपनी, अच्छी कंपनी मानूंगा मैं उसको, राइट, बिकॉज वो हमारा सॉल्यूशन वही कर रही है, हमको कहीं खटखटाना नहीं पड़ रहा दरवाजा, वी आर नॉकिंग द नॉट नॉकिंग द डोर्स ऑफ द फोरम्स हियर, ठीक है, तो ये रिड्रेसल फोरम के हम दरवाजे नहीं खटखटाएंगे, तो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, they should take care of the employee. Then the act provide 3 tiers redressal agencies where the consumer can file complaints, and these are district forum, state commission and national commission. तो इसको बोलते हैं 3 tier system. 3 tier system का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे भी है, तो कमीशन बना दिया। अब यही चीज़ क्या है, दे विल सिंपली टेकिंग केयर अकॉर्डिंग टू द केस फाइल, लाइक कितने अमाउंट का केस फाइल हो रहा है, सो दे विल बी टेकिंग केयर, और केसेस कैन बी फाइल्ड अप टू अ सर्टेन अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर एजेंसीज, ओके। सो दिस रिड्रेसल एजेंसी, यहाँ पर अपन कंप्लेन कर सकते हैं, अगर कंपनी नहीं सुन रही हमारी तो, ठीक है, हमारी कंप्लेन नहीं सुन रही तो वी कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट देम। नाउ कंज्यूमर राइट्स क्या है, अब इसके राइट्स देखते हैं अपन कि व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स। द फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें आपकी सेफ रहना ज़रूरी है, इसलिए हम खरीदते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, सपोज यू आर बाइंग टूथपेस्ट और समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग टू योर टीथ, देन actually you are not safe. Maybe you're buying pressure cooker, ISI mark, even after that some damage is happen, suppose cooker burst हो गया, so that can lead to some damage to your body, you might get hurt because of that. सो कस्टमर को सबसे क्या चाहिए, राइट टू सेफ्टी, मतलब जो भी प्रोडक्ट ये बना रही कंपनी तो हम सेफ रहें उससे, हजार्ड नहीं होना चाहिए, हजार्ड मीन्स खतरनाक नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ के लिए, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस राइट। तो राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द राइट कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ओके, जो चीज़ हमारे लिए खतरनाक है उससे हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। द राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ, द राइट इंक्लूड्स कंसर्न ऑफ द कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट as well as present requirement. Sometimes the manufacturing of defect in the pressure cooker, gas cylinder and other electrical appliances may cause loss of life, health and property of the customer. The right of the consumer from sale of such hazardous goods or services. Now what happen, हो सकता है कंपनी ने कुछ बैचेस में प्रोडक्शन करती है ना, जैसे कि एक साथ लॉट बनता है दवाइयों का, मेडिसिन का, चॉकलेट्स का, एंड सपोज सम डेफिशिएंसी इज देयर, वहाँ पर कुछ गलत डल गया केमिकल उसमें और उसकी वजह से हमको हर्ट हो सकता है, तो हमने जैसे ही कंप्लेन की, बिकॉज हम लोग सीरियस हो गए उस चॉकलेट को कंज्यूम करने के बाद, हमारी हेल्थ इश्यूज हो गए, और उसकी वजह से अब ये जितने भी प्रोडक्ट उस बैच में बने थे वो सब मार्केट में कहीं ना कहीं सेल आउट हुए होंगे, तो कंपनी को वापस रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है। रिकॉल करना मतलब जो भी डेफिशिएंसी उसको रिमूव करके वापस मार्केट में लाना पड़ेगा, खराब प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं रहने दे सकते, तो ऐसा करना चाहिए कंपनी को, बिकॉज एवरी कंज्यूमर इज हैविंग राइट टू सेफ्टी। अगर वो बीमार पड़ेंगे तो और भी बीमार पड़ेंगे उस प्रोडक्ट से, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, एवरीबॉडी इज गोइंग टू फाइल कंप्लेन, तो कंपनी को पहले ही रिकॉल कर लेना चाहिए, और कंपनी को भी पता है ये अधिकार है, कंज्यूमर हैज़ द राइट टू सेफ्टी। तो ये चीज़ सेफ्टी मतलब कि हमको सेफ रखना, हमारी लाइफ को खतरा ना हो, दिस इज द फर्स्ट राइट, फर्स्ट थिंग, ओके। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं लाइक गीजर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लाइक वो इलेक्ट्रिक वाला रॉड विच वी यूज इन द होम एट इन विंटर टाइम्स, राइट, सो इवन उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, सो वी आर नॉट सेफ इफ कंपनी आर नॉट मेकिंग इन अ राइट वे, देन आवर लाइफ इज नॉट सेफ, एंड दिस गुड्स, दिस टाइप ऑफ गुड्स शुड इमीडिएटली बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से हटा देना चाहिए इस तरह की चीज़ों को। सेकंड, राइट टू इंफॉर्मेशन, वेरी सिंपल वन, इसको समझना बहुत ईजी है। देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, ओके, उसको टर्न करते हो, तो देयर विल बी सम इंफॉर्मेशन रिटन ऑन इट। सपोज यू हैव परचेस बॉर्नविटा,
from the market. So when you turn it, there is some called something written on this product, इस पे कुछ लिखा हो रहता है, information will be there, like what are the ingredients, क्या क्या material raw material use किया गया उसके अंदर, what are the protein nutritions facts जो उसके रहते हैं कि कितना प्रोटीन कितना कार्ब्स आपको मिलेगा खाने के लिए, तो ये सब उस पे लिखा रहता है. so ये information ज़रूरी है. if the company is not writing or hiding some important facts, then this is a problem. ये अगर कुछ छुपाया जा रहा है, then it is not like right. like in the case of cigarette, अगर लिखा जाए that cigarette smoking is injurious to health, ऐसा लिखा जाता है, बट अगर उसको ना लिखो तो ये तो मैं एक फैक्ट छुपा रहा हूँ, मतलब कि इससे आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है. दिस इज अ फैक्ट जो मैं छुपा रहा हूँ, तो ये गलत है. ठीक है, ये चीज़ें बतानी चाहिए अगर आप कर रहे हो तो, इसलिए वो एक्ट के थ्रू अब क्या हो गया कि उनको लिखना पड़ता है ना ये चीज़ें. तो दिस इज़ अ लॉ. सो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ देयर कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए. प्लस अगर आप पूछ रहे हो कि किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी शॉपकीपर, तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या है फीचर्स, एवरीथिंग, देन इट शुड बी टेकन. Okay, so consumer should be informed about the product. So according to this right, the consumer has the right to get information. उसका अधिकार है कि उसको information मिले, जानकारी मिले about the quality, quantity, purity standard, price of the goods, services, to protect himself against the abusive and unfair practices. The producer must supply all the relevant information at a suitable place. अभी जितनी भी जानकारियाँ रहती है, कई कंपनियों ने तो कस्टमर केयर सर्विसेज के लिए फ़ोन कॉल्स भी अलाउ कर रखे कि आप फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं. तो इन्फॉर्मेशन जितनी भी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, यू कैन सिंपली कॉल एंड यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन आउट. सो दिस इज ऑल्सो राइट ऑफ द कस्टमर. सो दे आर डूइंग इट. तो कई जने कॉल भी करते हैं उसमें, और कस्टमर केयर बताता भी कि हमारा क्या है प्रोडक्ट, आप किस तरह से यूज़ करो, ऑल दिस थिंग्स. ओके, कोई भी मना नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है देन वो चीज़ गलत है. नाउ, राइट टू मेक चॉइस. चॉइस करना मतलब कि इट इज़ like it is up to the customer what he want to buy. Suppose you went to a shop and you want to buy some shampoo. Now there are varieties shampoo available or soaps available in the market, and being a customer, suppose I am offering you, मैं वो शॉपकीपर हूँ और आप कस्टमर हो, और मैं आपको सेल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सर ये बाय मत करो, आप जो चीज़ खरीदने आओ ये इतना वो नहीं इफेक्टिव, मैं जो बोल रहा हूँ ये लो आप. तो मैं अपना चॉइस आपके ऊपर थोप रहा हूँ. So this is not right. This is the right to make choice. The consumer has right to make choice. You can show him different type of product, then he will select what to buy. Okay, वो क्या खरीदना है वो सिलेक्ट करेगा. According to this, every consumer has the right to choose goods and services of his or her likings. तो ये बहुत ही ईजी है. यहाँ पर वो जो भी बोलते हैं ना, राइट टू चूज मीन्स ऑफ assurance of the availability and access to the variety of product एंड सर्विसेज एट competitive प्राइजेस. तो यहाँ पर जो भी कंज्यूमर को चाहिए उसको सही चीज़ पे अवेलेबिलिटी आपको बताना है. ऐसा नहीं बोलना कि अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, सर इसका आना ही बंद हो गया है, प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, जबकि वो रियली में मार्केट में है, बट स्टिल बोलते हैं कि कंपनी बंद हो गई है. झूठ बोल देते हैं कई बार कंज्यूमर से. और दूसरा, उनका जो प्रोडक्ट है जिसपे शायद उनको अच्छे मार्जिन मिल रहे हो, प्रॉफिट, दे विल ट्राई टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज दे आर सेलिंग देयर चॉइस एक्चुअली. एंड वॉट इज रिटर्न हियर, आपके कंज्यूमर के हिसाब से आपको चॉइस करना है. तो आपको जो चाहिए आप उससे वही चीज़ लीजिए. ठीक है, तो आपको जो चाहिए आपको आपके हिसाब से खरीदना चाहिए. तो दिस इज द राइट विच इज गिवन टू द कंज्यूमर कि वो सिलेक्ट करेगा, और आपको सब इंफॉर्मेशन देनी शॉपकीपर को कि क्या है ये चीज़ें. ठीक है, देन अगर केस स्टडी में अगर ये आता है तो वहाँ पे बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है. वहाँ पे क्लियरली दिख जाता है कि ऐसी बात करेंगे लाइक कि शॉपकीपर किसी कस्टमर को बोल रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है और आप मेरे हिसाब से ये चीज़ ले जाइए, ये सबसे बेस्ट है, और कंज्यूमर कुछ और लेना चाहता है, बट स्टिल शॉपकीपर्स को कुछ और भेज देता है उसके हिसाब से. अगर ऐसी बात होती हुई दिखे केस स्टडी में, सो दिस इज द वन, राइट टू मेक चॉइस. दिस इज द राइट विच इज बिन नॉट प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर. यही आंसर होगा उस केस स्टडी का, और बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं ये सारे राइट्स वहाँ पे. ठीक है, इंफॉर्मेशन में कैसा हो सकता था केस स्टडी में, सपोज ऐसी चीज़ होगी कि लेबलिंग जो होती है, जो जानकारियाँ लिखते हैं प्रोडक्ट के पीछे, मे बी पॉसिबल दैट दे विल से दैट कंपनी ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दिए और लिखी नहीं. अब इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी कंज्यूमर को बीमार हो गया, तो दिस इज द राइट विच इज़ बिन वायलेटेड. इस अधिकार को वायलेंट किया गया, इसको खंडित किया गया है. ओके, तो ये चीज़ आंसर हो जाएगा, पर राइट टू इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट देयर, क्योंकि उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया उसके बारे में. ठीक है, देन राइट टू हर्ड.
और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू हर्ड मतलब कि जब भी आपकी कंप्लेन होगी तो उसको सुना जाएगा, ठीक है। So according to this right, the consumer has the right to represent himself or being heard, or the right to advocate his interest in case of consumer has been exploited or has complained against the product or service, that he has the right to be heard and be assured that his or her interest would receive due consideration. And what is written here, if any consumer is having some kind of problem with the product and he's feeling like exploited because of that particular product, then he has got the right to be heard. When he will complain, then whatever is saying you will have to hear what the consumer will have to say, आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज़ है उसने कुछ पैसा देकर खरीदी ना, यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन रहता है, मतलब प्रोडक्ट खरीदते हो आपको कुछ बदले में कुछ देना है, जैसे पैसे हम देते हैं तो वो कंसिडरेशन होता है, बदले में कुछ देना। तो ये कानून की भाषा में, इन द लॉ, लैंग्वेज ऑफ द लॉ, इसको बोला जाता है कंसिडरेशन, कि आप जब कुछ खरीद रहे हो तो आप बदले में क्या करते हो, पैसा पे करते हो। तो ये सब चीज़ें वो कर रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें वो कर रहा है कंज्यूमर, तो डेफिनेटली आप उसकी कंप्लेन भी सुनो, है ना, कोई फ्री में तो लेके जा नहीं रहा है, ठीक है। द राइट includes the right to be representation in the government in the other policy making bodies. Under this right, the companies must have complaint cell to attend the complaints of the कस्टमर। और अधिकतर प्रोडक्ट्स जितने भी आप परचेस करते हो तो उसमें हमेशा एक बैक साइड पे कहीं ना कहीं लेवल में लिखा रहता है कि यू कैन, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, टोल फ्री नंबर आर देयर। सो व्हाट आर दीज नंबर्स एक्चुअली, यू कैन सिंपली कॉल इफ यू आर हैविंग रियली सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो और वो आपको सुनेंगे, राइट टू बी हर्ड। Then the fifth point is right to seek redressal. What is this point? According to this right, the consumer has the right to get compensation or seek redressal against unfair trade practices or any other exploitation. The right assures justice to consumers against exploitation. The right to be redressal includes the compensation in the form of money or replacement of goods or repair of the defect in the goods as per the satisfaction of the consumer. अब ये क्या होता है, right to seek redressal whenever the consumer has been exploited, अगर आपको exploit कर दिया गया, like आपको कुछ चीज़ आपको खराब बेच दी गई है या फिर कुछ चीज़ में कुछ डिफेक्ट है, तो ये चीज़ों को क्या करना है, कंपनी को आपको रिड्रेसल देना है, मतलब कि दे विल हैव टू कंपनसेट यू, आपको पैसे देना पड़ेंगे, कंपनी को भरना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन इस केस में मिलता है और आपको कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पैसा दे दिया कि हाँ, आपको लाइक आप बहुत बुरी तरह से बीमार हैं और फिर आपको कंपनसेशन के लिए, मैंने जानता हूँ कि आप हॉस्पिटलाइज हुए थे और मैंने आपको जो क्लेम करा, मैंने बोला कि ठीक है आप बहुत बीमार हो गए, कोई बात नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं जितनी भी इस तरह की चीज़ें थी मार्केट से वापस बुला लेता हूँ, वापस रिकॉल कर लेता हूँ अपने पास में, अब तो ठीक है ना। तो ये चीज़, आप तो हॉस्पिटल में पड़े हुए हो, आपको कैसा फील होगा कि ठीक है, ये तो ठीक है, उसने सारी कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट था मार्केट से रिकॉल कर लिया, वापस अपने पास बुला लिया, बट आपको क्या मिला इससे, तो दे विल हैव टू पे सम कंपनसेशन ऑल्सो, क्योंकि जो भी आपने पीड़ा, वॉट एवर दिस एगनी जो कि आपको मिली, पीड़ा मिली है, तो ये जो चीज़ है, ये इसका क्या, तो इसके लिए भी आपको कुछ मिलना चाहिए कंपनसेशन, तो कंपनी को इनफ कंपनसेशन भी देना चाहिए, मीन्स उनको पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरह से आपका एक्सप्लॉयटेशन हो गया है यहाँ पर। तो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करे इस तरह से कंपनसेट भी करना ज़रूरी है। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो अगेन यू कैन फाइल कंप्लेंट फॉर दिस, ठीक है। जैसे कि बहुत ही कम कंपनी आपको पे कर रही है या फिर आप किसी के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन, तो आप यू कैन फाइल कंप्लेन इन द नेक्स्ट वन, ओके। तो आप कहीं नेशनल कमीशन पे भी जाके कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन तो चाहिए, कम दे रहे हैं तो फिर तो गलत है, राइट। नाउ राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर का एजुकेट करना मतलब उसको सिखाना कि किस तरह से प्रोडक्ट हैं, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, ये सब उसका एजुकेट रखना कंज्यूमर को। एजुकेटेड कंज्यूमर रहेगा तो वो चीज़ सही से बाय करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द राइट ऑफ द कंज्यूमर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म टू कस्टमर्स। इट इज ईजियर फॉर द लिटरेट कंज्यूमर टू नो their राइट्स एंड टेक actions, but this right assures the illiterate consumer can seek information about the existing acts and agencies that are set up for their protection. The Government of India also include consumer education in school curriculum and in various university courses. Government is also making use of media to make consumer aware about this right and make wise use of their money.
तो यहाँ पर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट भी इसमें बहुत एफर्ट दिखा रही है और कई कंपनियां भी बताती है कि किस तरह से आपको इसको परचेस करना है। इवन द इन्वेस्टमेंट की जो कंपनियां हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब भी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम दे विल बी प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि यू शुड फर्स्ट चेक द रिस्क इन द इन्वेस्टिंग इन द मनी इन द कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आप पहले ठीक से समझ लो, कर लो, फिर अच्छा समझ कर आप पैसा इन्वेस्ट करना। तो एजुकेट करते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं नहीं कर दो, बहुत अच्छा मार्केट है, यू विल गेट लॉट ऑफ मनी इन द फ्यूचर, ऐसा नहीं बोलते। तो झूठ नहीं बोलते, वो एक्चुअली आपको एजुकेट करते हैं कि क्या होता है, किस तरह से। एंड इवन इफ यू टॉक टू देम दे विल एजुकेट अबाउट देयर प्रोडक्ट, वो आपको बताएंगे कैसा है क्या है। तो कुछ लोग कंज्यूमर्स लाइक दे आर लिटरेट, like people like you and I, we are all educated, we know how to read and you can understand what is written on the product easily, and then you can purchase. But there are some people who are ignorant, who cannot write or understand what has been written। तो जो अनपढ़ लोग हैं जिनके लिए प्रॉब्लम है, तो उनको गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है, उनको एजुकेट करती है, जा जाके उनको बताती है किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको अंडरवेट तोल कर दे देते हैं प्रोडक्ट को, ये सब चीज़ें क्या गलत है, क्या सही है, नकली क्या असली क्या, ये सब जो, क्योंकि जो पढ़ नहीं सकता उसके लिए कुछ भी लिखा होगा लेवल पे उसके लिए ना के बराबर है। सो दे विल बी प्रोवाइडिंग देम लाइक कुछ दूरदर्शन पे आप चैनल्स पे आप चेक करोगे तो उनको गाइड किया जाता है कि कौन से कंपनी के आपको बीज लेने चाहिए, इस पे क्या लिखा हुआ रहता है, व्हाट साइन टू चेक, कुकर ले रहता है, एसआई मार्क क्या होता है, ताकि गलत चीज़ को ना खरीदें। उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, अवेयर किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, ताकि वो लोग भी गलत चीज़ ना खरीदें। ओके, now so the consumer rights, today we are done almost 6 we have done. Okay, so all this you will have to remember. Then tomorrow we are going to start this consumer responsibilities. Okay, so till then, thank you, we'll see in the next class.